آئے سب اپنی جگہوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ عہد جدید میں سے مرکز کی انجیل اس کا 4 باب اس کی 35 آیت سے اس طرح سے لکھا ہے۔ In the New Testament, Mark chapter 4 verse 35۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا، آؤ پار چلیں۔ اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا۔ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ پھر اسے کہا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ آمین۔ آج جو میرا مضمون ہے، جب حالات آپ کے خلاف ہوں۔ کیا مضمون ہے جی؟ کئی بار ہم زندگی میں یہ محسوس کرتے ہیں، کسی نے کچھ باندھ رکھا ہے، کسی نے ہم پر کچھ کر دیا ہے، ہمارے گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، نشہ ختم نہیں ہو رہا۔ مینی ٹائم یہ سوچیں، یہ خیالات، سفرنگ، ڈیفیکلٹیز، بیماریاں، مشکلات always behind us، always behind us۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن جو تلاوت آپ کے سامنے کی گئی، اس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ جب یسوع ہمارے ساتھ ہو، جب یسوع ہماری زندگی میں ہو، بے شک طوفان آئیں، مشکلات آئیں، وہ ہمیں سنبھال لیتا ہے۔ میں آپ کو شروع ہی سے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں چیلنج تو رہتے ہیں، لیکن کئی بار پنجابی چکالو کھاڑے نہیں چھڑ دے، مشکل ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو ریکگنائز کرنا، پہچاننا، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا۔ اور مینی ٹائم ہم نے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے، ہم انسان ہیں اور ننگے پیدا ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتے ہیں تو دنیا ہمیں کپڑے پہناتی ہے، ہماری ماں یا ہماری ماسیاں، اور جب مر جاتے ہیں اس وقت بھی دنیا نہلاتی ہے، دنیا ہی کپڑے پہناتی ہے۔ We cannot do anything۔ بہت سارے ملینز ڈالر، ہنر، لیکن سم ٹائم ہم اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے ازواجی بندھن کو، نہ اپنے حالات کو۔ اور پھر ہمیں ایک ڈیوائن فیور کی، ایک الہی فیور کی ضرورت ہوتی ہے، اور یسوع مسیح کی ذات ہے۔ جب جیسس کرائسٹ، the Son of God, the Almighty God, the King of Glory،
हमारे बीच में होता है तो वो हमें संभाल लेता है। कमजोर हो जाएं, गिर जाएं, फिर भी वो उठा खड़ा करता है। और आपकी जिंदगी में ये ऐसा चैलेंज है, खत्म नहीं होते हैं, तो ट्राई करें कि सरमन के आखिर तक आप अपना आप यीशु मसीह को मुकम्मल तौर पर दे चुके हो। कई बार हमने अपनी जिंदगी में सिर्फ संडे ही खुदा को दिया होता है, इबादत का टाइम है। कई बार हमने सिर्फ अपना हाथ ही खुदा को दिया होता है, या शायद अपना हदिया खुदा को देते हैं। कंप्लीटली वी डोंट सरेंडर, सारा कुछ नहीं देते हैं। लेकिन बरकत, सलामती उस वक्त है जब टोटली हम सरेंडर कर जाते हैं। ये जो वाक्य है ये गलील की झील के किनारे पर है। गलील की झील, यीशु मसीह ने इसके इर्द गिर्द, गलील की झील के मगरब की तरफ यहूदी बस्तियां थी, कॉलोनियां थी, और गलील के मशरक की तरफ जेंटाइल गैर कौम थे। यीशु ने अपने मगरब की तरफ यहूदी बस्तियों की तरफ ज्यादा टीचिंग दी, प्रीचिंग की, और फिर मशरक की तरफ उसने ज्यादा मौजूद किए। और फिर गलील की झील पर भी, इसके गिरदोनवा में और इसके ऊपर भी यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल किए। क्योंकि आज जो कलाम हम सुनने को जा रहे हैं, ये गलील की जो झील है उस पर ये मिरेकल, ये वाकया हुआ था। यीशु मसीह की शख्सियत आज से 2000 साल पहले भी इतनी अट्रैक्टिव थी ना, कि यीशु के पीछे उस वक्त भी हजारों की तादाद में लोग लगे होते थे। जब आप पढ़ते हैं 4000 ने, 5000 ने खाना खाया, तो वहां पर औरतों और मर्दों की बच्चों की तादाद नहीं लिखी है। उनको अगर इंक्लूड करें तो देन मे बी 15, 20, 25, 30,000 के करीब ये सारे करोड़ जाते हैं आज से 2000 साल पहले। तो यीशु मसीह सारा दिन हजारों लोगों पर हाथ रखते, टीच करते, लोग उन्हें छूते। और मैं सम टाइम ये कभी हैरान रह जाता हूं कि फिजिकली बड़े स्टैमिना था यीशु मसीह का। हम 2-3 गीत गाकर थक जाते हैं, हर दिल करता सानू कि ग्लूकोज की बोतल लाए, लेकिन यीशु मसीह सारा दिन थकते नहीं थे, नेवर। पूरी रात, अर्ली इन द मॉर्निंग वो 3 बजे उठ जाते थे, पहाड़ पर चले जाते थे, पूरी रात ही पहाड़ पर नीचे उतरते थे। अगे पूरी लाइन मरीजों की लगी होती, हजारों की तादाद में। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है हजारों की तादाद में है, हजारों की तादाद में यीशु हैं। और फिर जब रश बढ़ गया तो फिर यीशु कश्ती के अंदर आ गए। और फिर ये बीच है, गलील का बीच कह रहे हैं, जैसे ट्रांटन जो ओशन, इसका जो बीच है ये भी गलील का बीच था। तो जब रश ज्यादा हो गया तो खड़े होना मुश्किल हो गया, तो यीशु मसीह कश्ती में आ जाते हैं। और फिर कश्ती में खड़े होकर उन्होंने लोगों को वाज दिया, और सारा दिन वहीं पर, और लोग सुनते थे, थकते नहीं थे। मुझे पता है मेरी अपनी कैपेसिटी आधा घंटा सुन सकता हूँ, आधे घंटे बाद आपने भी थके जाना है। आपने भी जो का दुआ करने पर सब कदों स्टेज तो थले जान दे, सारे नहीं, ठीक है, सामने ही दुआ करने कदर, लेकिन उस वक्त नहीं थे थकते। यीशु जब बोलते थे ना तो ऐसी एक क्या लेकिन 19 ठहर जाती थी, ऐसी एक शैडो, एक क्लाउड ठहर जाता था, तो लोग थकते नहीं थे। 2-2, 3-3 दिन सुनते रहते थे, यीशु के पीछे चलते रहते थे। ये नहीं कि यीशु मसीह ने क्रिसमस का प्रोग्राम किया, खाना खाया तो सारे भाग गए। 2-2, 3-3 दिन बाद लोगों को रोटी मिलती थी। ये नहीं कि सुबह शाम नाश्ते चल रहे हैं, लंच चल रहा है, डिनर चल रहा है, नहीं। जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता था, भूख बढ़ जाती थी, फिर उनको रोटी मिलती थी। ऐसे होता था। ये नहीं कि आए ने घंटा बादल की चलो रोटी खाओ तो जाओ करानो, देगा पकाओ तो बंदे इकट्ठे करो तो जाओ, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। और फिर यीशु मसीह कश्ती पर आ गए और शाम होगी, और फिर यीशु ने कहा
आओ पार चलते हैं। शागिर्द भी थक गए थे और लोग भी टू मच हो गए थे, और फिर यीशु ने कहा आओ पार चलते हैं। मैन टाइम कई बार खुदावंद हमें आगे लेकर जाना चाहता है। उसने अपने शागिर्दों से कहा आओ पार चलते हैं। वो आज भी अपने शागिर्दों को, जो उसके चाहने वाले हैं, वो हमेशा ये डिजायर करता है कि हमारी जिंदगी में ग्रोथ हो, तरक्की हो। खुदा कभी नहीं चाहता कि एक चर्च में 5 बंदे हों तो अगले 5 साल से 5 ही बैठे रहें। नेवर, दिस इज नॉट गॉड। खुदा की ये डिजायर नहीं है। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने न्यू लाइफ चर्च को बढ़ाया है और यहाँ पर बहुत अच्छी लीडरशिप है, वुमन बड़ी अच्छी है, यूथ मिनिस्ट्री बड़ी अच्छी है, बड़े खादमों की आप सब की वर्शिप टीम की। जरा ना सबने जोर दी तालियां तो मार दो। तो आपने चर्च को बढ़ाया है, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। तो कई बार यीशु चाहता है कि हम बड़े आगे जाएं, उसके साथ ट्रैवल करें। और यहां पर भी जब यीशु अपने शागिर्दों के साथ है, एक कश्ती में यीशु मसीह है, उसके 3-4 शागिर्द हैं, बाकी और भी कश्तियां हैं, उनमें भी यीशु के शागिर्द हैं, एक में सारे नहीं थे बैठे। और फिर जब लोगों ने सुना कि ये अब उधर जा रहे हैं, कुछ और भी लोग अपनी कश्तियों को लेकर आ गए थे। अब यीशु की अकेली कश्ती नहीं थी, अब बहुत सारे लोग हैं जो यीशु के साथ आगे जाना चाह रहे हैं। यीशु है, उसके डिसाइपल्स हैं और लोग हैं। जब हम गलील की झील की बात करते हैं तो इस बात को याद रखें, जब आप अनाजील को पढ़ते हैं तो इसमें 3 नाम आते हैं, गन्सरत की झील, गलील की झील और तबरियास की झील। ये एक ही झील के नाम है, ये लहदा नहीं है। लेकिन था ये कि जिस इलाके से ये झील गुजरती वही उसका नाम ठहरता था। अगर फर्क करो, फिलाडेल्फिया से गुजर रही है तो फिलाडेल्फिया लेक कह सकते हैं, टोरंटो के पास से गुजरी है टोरंटो लेक कह सकते हैं, लेकिन झील एक ही थी। इसके 3 नाम थे। इसकी लंबाई जो थी 12.5 मील थी और इसकी जो चौड़ाई थी ये 4 से लेकर 7 मील तक थी। कुछ जगहों पर 4 मील, कुछ पर 7, ऐसे आगे पीछे थे। इसके इर्द गिर्द पहाड़ थे, वादियां भी, पहाड़ भी थे। इसका पानी डीप था और इसका पानी मीठा था, लोग पी सकते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर मछलियां बहुत थी। फलस्तीन की, इसराइल की इंडस्ट्री जो मछलियों की थी, वैसे तो आज भी पानी और पत्थर वो बेच रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी उनकी जो इंडस्ट्री थी ये थी कि जितने यीशु के शागिर्द हैं, आप इनको देखें, ये मछलियां पकड़ते थे, क्योंकि टू मच फिशेस यहाँ पर थी, तो इसलिए लोग पकड़ते और अपना कारोबार चलाते थे, क्योंकि इसका पानी मीठा था। इस झील में पानी जो आता था वो जॉर्डन रिवर से, दरिया यरदन से आता था, और फिर इस झील से होता हुआ ये डेड सी में जाता था। जब डेड सी में जाता था तो फिर वहां पर मौत है, वहां पर जिंदगी नहीं है। आज जॉर्डन रिवर से रहा है, जा डेड सी में रहा है। जो ब्लेसिंग, जो बरकत खुदा आपको किसी भी शेप में देता है, हमेशा कोशिश करें उसको मल्टीप्लाई करने की। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो कुछ खुदा ने आपके अंदर रखा है वो डेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और खुदा ने आप में से हर एक के लिए खुदा ने खिदमत रखी है। यहां पर कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके अंदर खुदा ने खिदमत नहीं रखी। लेकिन अगर आप नहीं यूज करेंगे, अपने आप को पेश नहीं करेंगे, यू विल बी डेड, आप खत्म हो जाएंगे। और इसलिए जो कुछ भी आपको मौका मिले, खुदा को हमेशा सर्व करने की कोशिश करें, किसी भी तरीके से। आतर आज भी जॉर्डन है, लेकिन डेड सी के अंदर जिंदगी नहीं है, उसके अंदर जिंदगी नहीं है। इसलिए जिंदगी हमारे अंदर है, इस जिंदगी को हमेशा आप पेश करें। इस झील के अंदर तूफान भी आते रहते थे
और उस तूफानों की वजह ये होती थी कि जब पहाड़ों की हवाएं और झील की हवाएं जब ये आपस में टकराती थी, गर्म और सर्द, तो फिर उस पानी में तूफान उठते थे और ये आते रहते थे। ये कोई ऐसा नहीं था कि नहीं थे, आते रहते थे। लेकिन ज्यादातर ये झील सुबह और शाम को खामोश रहती थी, ज्यादातर। और ये सारे माहीगीर थे, इनको तजर्बा होता था कि कब ये तूफान आने हैं। यहां पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ हैं और तूफान आ जाता है और शागिर्द ये कोशिश करते हैं कि हम बच जाएं। उन्होंने बड़ी मेहनत की कि अपने आप को बचा सके, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं सके। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो पीछे गद्दी पर सो रहे थे। जो फिशिंग वाली कश्तियां होती थी उसके पीछे सीट होती थी, उसके ऊपर कारपेट होता था, और जब वो रात को थक जाते थे तो बारी बारी आराम करते थे, उस पर लेट जाते थे। तो यीशु मसीह पीछे लिखा है कि सो रहे थे। और फिर जब ये तूफान उठा है, इसको जरूर पढ़िएगा घर जाकर, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 से। और लिखा है कि जब ये तूफान उठा है तो बेहद ये बढ़ गया है, बेहद ये बढ़ गया है। उन्होंने बहुत सारे तूफानों को देखा, कंट्रोल किया, बचाया अपने आप को, लेकिन आज ऐसा स्टॉर्म उठ गया है उनकी जिंदगी में कि वो तजर्बाकार होने के बावजूद भी अपने आप को सेव नहीं कर सके। थक गए, तंग आ गए, उनके अपने जानों के लाले पड़ गए कि हम मर जाएंगे। उनको अपनी मौत नजर आने लगी। यही पानी उनको जिंदगी देता था, यही पानी वो पीते थे, यही पानी उनको रोजगार देता था। इसी पानी पर मछलियां पकड़ते पकड़ते वो आदमखोर बन गए, लेकिन यही पानी आज उनके लिए मौत बन गया। यही पानी उनके लिए कब्र बन रहा है। कई बार जिंदगी में ऐसे भी होता है, बहुत सी चीजें आप बनाते हैं, कायम करते हैं, खड़ा करते हैं, वही आपके दुश्मन हो जाते हैं। वही आपके दुश्मन हो जाते हैं जिनके लिए आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट की होती है, जिसके लिए आपने बड़ा टाइम दिया होता है, वही लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, वही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया है, ये ऐसे ही होता है। ये पानी उन्हें ठाता भी था, रोजगार भी देता था। आज यही पानी यहां पर जब यीशु के पास आते हैं तो कहते हैं, तुझे फिक्र नहीं हम हलाक हुए जाते हैं, तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। इस जमीन कि उस पानी, उस तूफान के अंदर बड़ी खौफनाक आवाजें थी। जब आप टर्नेडो को, सुनामी को, इन तूफानों को करीब से देखते हैं तो इंसान पर खौफ छा जाता है। उसके अंदर आवाज आ रही थी कि तुम मर जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे। कई बार इब्लीस भी हमारी जिंदगी में ऐसी आवाजें हमारे कानों में डालता है, तू मां नहीं बन सकती, तू बाप नहीं बन सकता, तेरा साथी ठीक नहीं हो सकता है, तेरी बीवी ठीक नहीं हो सकती है, तेरा कैंसर ठीक नहीं हो सकता है, तेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते हैं, तेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, तेरा खानदान ठीक नहीं हो सकता है, तेरे घर में बरकत नहीं आ सकती है, तेरे घर में, तेरी जिंदगी में कभी कोई मौजा नहीं हो सकता है। ये बातें हमारे कानों से टकराती रहती हैं। मैंने टाइम हम सोचते रहते हैं अमेरिकान के भी की घटिया, कईयों को बरकत मिलती है, कई अमेरिका आकर भी। एक बंदा, मैं कनाडा में गया, मीटिंग हुई, मीटिंग कहता पारिसा मनु टाइम दो जरा, थोड़ा जा मेरे नाल घर चलो। मैं उस आदमी के घर गया तो उसने दरवाजा बंद कर लिया तो रोना शुरू कर देता। उसने रोना शुरू कर दिया, मुझसे उम्र में बड़ा था, वो रोना शुरू कर दिया। हर कनाडा पूरी फैमिली बड़े शौक, लेकिन मुझे स्टोरी भूल गई या थोड़ी सी
लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं आपके जहन में, आपके खानदान में, आपके बच्चों में, आपके ज़वाजी बंधन में तूफान उठ रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप कुछ भी नहीं कर सकते। कोई इलाज मेरे अजीजों होता नहीं है। ये तूफान हमारी जिंदगी में, यहां पर भी तूफान आया है, स्टॉर्म आते हैं, ये हमारी जिंदगी को डीफोकस करते हैं। ये डीफोकस करते हैं आपके फ्यूचर को। आपकी जिंदगी में बलावा है, खुदा ने आपकी जिंदगी में बरकतें रखी हैं, खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन एकदम आप डीफोकस हो जाते हैं। आपकी तवज्जो इन तूफानों की तरफ लग जाती है। आप मेंटली स्पिरिचुअली डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। और पर्पस यही होता है, पर्पस यही होता है कि हम उस लाइन पर ना रहें जो ब्लेसिंग, जो डेस्टिनेशन खुदा ने हमारे लिए रखी है, हम उस तरफ ना जा सके। वो हमें हमारी मंजिल से हटाता है, इन हालात को, इन चीजों को इस्तेमाल करता है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। खुदा ने हमारे साथ वादे किए होते हैं, लेकिन हम वादों तक पहुंच नहीं पाते हैं, बिकॉज वी आर डिफोकस्ड। हम पटरी से उतर जाते हैं, हमारी दुआएं पटरी से उतर जाती है, हमारी खिदमत पटरी से उतर जाती है, हम रिश्तों में उतर जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। और इब्लीस यही करता है, हम उस राह पर ना चले जो आसमान पर जाती है। हमें रास्तों से मेरे अजीजों वो हटाता है। लेकिन ये शागिर्द उठे हैं, यीशु के पास गए हैं, इन्होंने कदम उठाया अपना और यीशु की तरफ गए हैं। और जब देखा इनका तजर्बा इनके काम नहीं आया, कई बार नहीं बड़े सियाने होंगे, कोई नहीं वेख लेने, लेकिन हर जगह तेरा सियानापन नहीं चलता। कई बार हम बड़े मास्टर होंगे, वेख लेने, लेकिन हर बार आप मास्टर नहीं रहते। किसी जगह पर आपको किसी की जरूरत होती है, अल्लाह ही फेवर की जरूरत होती है। शागिर्द कोशिश कर ली अपनी जाने बचाने की, अपनी कश्ती बचाने की, बट नेवर। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि ये यीशु के पास अपने उठाते हैं पीछे और शिकवा करते हैं, तुझे हमारी फिक्र नहीं, ऐसी मर रहे हैं थे। लेकिन ये गए यीशु के पास। मुश्किलात में आप किसके पास जाते हैं? आप किसका दरवाजा खटखटाते हैं? दैट इज योर रियल फेथ। जो कुछ हम मुश्किल में, बीमारी में कहते हैं, वो आपका हकीकी ईमान है। इधर मैं यहां पर 10 बंदों को कहूं ना कि आकर गवाही दें, आपकी गवाहियां बड़ी जबरदस्त होगी। जंप मार मार कर हम गवाहियां दे सकते हैं। एक्साइटमेंट पता तो उदो चले था कि जो सामने गवांढियों की लड़ाई हो रही है, उदो तेरा ईमान की है। जब ससुराल के साथ आपका ईमान क्या है? आप बीमारी के बीच में व्हाट इज योर फेथ, वो आपका रियल फेथ है। मुश्किल हालात में जो कुछ आप होते हैं, दैट इज योर रियल फेथ। असल ईमान वो है। अच्छे भले हालात में हर बंदे का ईमान बड़ा अच्छा लेने लगाता है, जंप मारता है। लेकिन मुश्किल में व्हाट यू स्पीक एंड व्हाट यू डू, आप क्या करते हैं? ये यीशु के पास आए हैं। यीशु ने उठे और इस तूफान को डांटा और तूफान खामोश हो गया। ये तूफान जो उठा था, ये अचानक नहीं था, इसके पीछे इब्लीस था। क्योंकि यीशु मसीह एक शख्स को जो गरासीनियों के इलाके में रहता है, जिसके अंदर 6 से 10 हजार तक बदरूह हैं, यीशु मसीह हजारों को छोड़कर उस एक शख्स को बचाने के लिए जा रहे हैं। यीशु मसीह उस कब्रिस्तान को विजिट करने जा रहे हैं जहां पर मौत है और जहां पर एक शख्स को इब्लीस ने बांध रखा है। चूंकि उसके अंदर लश्कर था, और इब्लीस को कभी भी लाइट ना लिया करे, इतना लाइट भी नहीं जे। कई बार हम बड़ा लाइट लेते हैं, डा लाइट है नहीं जे। हाँ,
یہ اس بات کو یاد رکھیں، کئی بار ہم بڑا لائٹ رہتے ہیں شیطان کو. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ اس ابلیس نے یسوع کو، اس گراسنے کی اس بدرو نے جس میں وہ لشکر ہے جس کو کہا گیا ہے، یسوع کو اس کے شاگردوں کو گلیل کی جھیل کے بیچ میں مارنے کی کوشش کی کہ یہ مر جائے یہاں پر، یسوع بھی مر جائے. اس کا ڈائریکٹ اٹیک یسوع مسیح پر تھا. ڈائریکٹ اٹیک یسوع مسیح پر اس نے کیا تھا، اور یہ اس کا پہلا اٹیک نہیں تھا. یہ ابلیس کو پتا تھا کہ یہ کون ہے، اور جب وہ آگے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو زندہ خدا کا بیٹا ہمیں عذاب میں نہ ڈال. اس کو پتا تھا کہ یہ کون، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، یہ ہمیں عذاب میں ڈال سکتا ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. یہی ابلیس، لیکن اس سے پہلے ہی کام کرنا چاہ رہا تھا. اور وجہ کیا تھی؟ جب یسوع مسیح پیدا بھی ہوئے اور ہیرودیس نے 2 سال کے بچوں کو مروا دیا. پرپس کیا تھا؟ ابلیس کو پتا تھا کہ یسوع کفارہ دینے کے لیے آیا ہے، اور یہ کفارہ کلوری کے مقام پر صلیب پر ہونا تھا. تو ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع صلیب پر جا کر اپنی جان دے. کفارہ صلیب پر ہونا تھا، سولی پر ہونا تھا، لیکن وہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یہ کفارہ وہاں پر ہو دنیا کے نجات کا. اس نے بچپن ہی میں اٹیک کیا یسوع مسیح پر، لیکن یسوع بچ گیا. پھر یہودی لیڈروں نے یسوع مسیح کو پہاڑی پر سے گرانے کی کوشش کی، اور یسوع لکھا ان کے بیچ میں سے بچ گئے. اس کے اپنی قوم نے یسوع کو بیفور ٹائم مارنے کی کوشش کی تاکہ یسوع صلیب پر نہ جائے. آج دنیا سے ایک چیز جو ختم ہو رہی ہے، لسن ویری کیئرفلی، اور وہ یہ ہے کہ یسوع کے منادی نہ ہوں اور یسوع کی صلیب کے منادی نہ ہوں. آج بڑے بڑے چرچز میں جائیں گے، لوگ آپ کو لطیفے سنائیں گے، میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے، آپ کو یہ کہیں گے لو ایوری ون، لو ایوری ون، لو ایوری ون، بٹ دے فارگیٹ دی لو آف گاڈ. وہ خدا کے لو کو بھول گئے ہیں جو یسوع مسیح کی صورت میں ہے. ابلیس بڑی تیزی سے مختلف تنظیموں، کارٹونوں، فلموں اور میڈیا کے ذریعے سے ہمارے اندر سے صلیب کے پیغام کو چلاتا ہے، صلیب کو چلاتا ہے، یسوع کو چلاتا ہے. لوگ کھل کر یسوع کا پیش نہیں کرتے ہیں. میں نے خدا سے تہیہ کیا کہ خدا، میں نے 3-4 سال سے اب خدا سے تہیہ کر لیا کہ میں نے موسٹلی 100% تو نہیں ہو پاتا، لیکن 80-90% I preach the gospel and I preach the word of God and I preach the Jesus Christ. یسوع کا پیش کرے، یسوع کا پیش کرے. آپ کی 19 بڑھ جائے گی، آپ کا مسا بڑھ جائے گا، آپ کی برکت بڑھ جائے گی، آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے جب آپ یسوع کا پیش کریں گے. ہاللویا. یسوع مسیح گتسمنی باغ میں گئے، وہاں پر یسوع کا پسینہ جو ہے کیا بن کر گرنے لگا؟ خون کی بوندیں. اب پسینہ ہے تو خون کہاں سے آ گیا بھائی؟ لیکن اس قدر اس کا ٹیگ تھا کیونکہ وہ یسوع کی آخری دعا تھی جو صلیب پر جانے کے لیے کر رہے تھے کہ خدا اسٹرینتھن میں دنیا کا کفارہ دینا تھا، گناہوں کا کفارہ دینا تھا. یسوع جو بھی کام کرتے تھے دعا سے کرتے تھے. اس لیے اس دعا کے وقت اس طرح ابلیس کا ٹیگ تھا کہ ابلیس نے چاہا کہ یسوع کو وہی ختم کر دے گتسمنی باغ میں. اس لیے یسوع سے کیا اٹھتے ہیں؟ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور جب یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، وہ 1 انچ کے کانٹے تھے. اور فلسطین میں ایک بیل اگتی ہے جس کے اگلے سروں پر پوائزن ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے. اور جب یہ یسوع مسیح پر کانٹوں کا تاج آرام سے نہیں رکھا گیا تھا، زور سے رکھا گیا تھا، خون نکلے، کانٹے اندر جائیں، یسوع کی جان وہ جائے. وہ مار نہیں سکا، وہ مار نہیں سکا کیونکہ وہ چاہتا تھا، ابلیس یہ چاہتا تھا کہ یسوع کفارہ کوہ کلوری پر نہ دے. راستے میں جو جگہ سے فائنلائز کی گئی، جو خدا کا منصوبہ تھا، اس لیے جہاں پر بھی ابلیس نے چاہا کہ یسوع راستے ہی میں سٹوری ختم ہو جائے. اور وہ صرف یسوع کے خلاف نہیں ہے،
अंडरस्टैंड, अपने दुश्मन को पहचाने, वो आपके भी खिलाफ है। जो लोग खिदमत करते हैं, आप जितने भी यहां पर आए हैं, आप सारे खुदा की खिदमत करते हैं। आप अगर तालियां बजा रहे हैं तो ये भी खुदा को सर्व कर रहे हैं। आप हदिया जात दे रहे हैं, खुदा को सर्व कर रहे हैं। आप साउंड चला रहे हैं, खुदा को सर्व कर रहे हैं। आप कुछ नरसिंगे बजा रहे हैं, आप खुदा को सर्व कर रहे हैं। आप गा रहे हैं, आप जो जितने भी हैं, आप बेहतर तरह से खुदा को सर्व करते हैं। जो लोग खुदा से प्यार करते हैं, खुदा को सर्व करते हैं, खुदा के लिए रुपए पैसे देते हैं, खुदा के खादमों की खिदमत करते हैं, इब्लीस सबसे पहले उनके बच्चों के पीछे होता है। पाकिस्तान च कई बारी मिसाल लोग देते हैं, पारियां दे याने खराब ही होंगे। यहाँ का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। क्यों? वो आपके फ्यूचर को तबाह करता है। पारी फंस जेना मसला है, आपके मनुष्य को तबाह करता है। अब अय्यूब के बारे में लिखा है, अय्यूब मशरक में नेक आदमी था, पाक आदमी था, खुदा से प्यार करता था, कुर्बानियां देता था। वो उस वक्त की वर्ल्ड का अलोन मस्क था, सबसे अमीर आदमी था। मगरब उस वक्त नहीं था, मगरब उस वक्त नहीं था, अमेरिका बरतानिया कोई नहीं होता। वो अमीर आदमी था, लेकिन किसने उसके बच्चों को मारा? किसने मारा बच्चों को? इब्लीस ने। एक ही दिन में बच्चों को तबाह कर दिया, एक दिन मार दिया, खत्म कर दिया, उसके बच्चों को खत्म कर दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं हमारी जिंदगी में कमजोरियां हैं, लेकिन अय्यूब के बारे में कलाम कहता है उसमें कोई कमजोरी नहीं थी। He loved God, वो खुदा से प्यार करता था, लेकिन एक ही दिन में उसके बच्चों का सत्यानाश कर दिया। कई बार वो हमारे भी बच्चों पर अटैक करता है, एडिक्शन में ले जाता है, गलत दोस्तों में ले जाता है, हमारे बच्चे बुरी सोसाइटी में चले जाते हैं। लेकिन इस बात को याद रखें, कई बार हम इल्जाम लगाते हैं ये उसके साथ था, ये उसके साथ था, ये उसके साथ था, लेकिन मैं सबके बारे में तो नहीं, ज्यादातर इब्लीस आपके बच्चों के पीछे है। कोई दुनिया आपके बच्चों के पीछे नहीं होती है। इब्लीस वो आपको खत्म करना चाहता है। आपके बच्चे तबाह होंगे, मां बाप खुद ही तबाह हो जाते हैं। आपके बच्चे रॉन्ग पटरी पर है, आप ऐसे ही फंस जाते हैं हालात में, आपके बच्चों को पकड़ लेते हैं। जो बाल था, बाल देवता, इसकी जो कुर्बानी होती थी ना, लोग अपने बच्चों को कुर्बान करते थे। इसके लिए जो कुर्बानियां दी जाती थी अपने छोटे बच्चों को। और ये जो यहू की दीवार थी, ये दीवार इसलिए नहीं थी कि ये 2 दीवारें थी बड़ी, इसकी दीवारों के अंदर उन बच्चों के सर थे, धड़ थे, वेरी स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग होल्ड था। इसलिए वहां पर जोशुआ और उसके लोग उसको गिरा नहीं सकते थे। डिवाइन फेवर की जरूरत थी इन दीवारों को गिराने के लिए। कई चीज हम नहीं कर सकते। इब्लीस सबसे पहले आपके बच्चों के पीछे है। आपकी जिंदगी में तूफान उठा, पता ही नहीं चलता, बच्चा बारों बार गिरे मर जाते हैं। पिछले दिनों में हुआ भी, कई बार हुआ पेंसिल्वेनिया में, कई क्रिश्चियन बच्चे गए, यंग बच्चे गए, आपको भी पता, मुझे भी पता, मरे हैं कि नहीं बच्चे? मर यहां मरे, एडिक्शन में मरे हैं या वैसे मरे हैं, हर जगह। ये नहीं कि यहां पर, एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार के बच्चों के पीछे होता है। और सिर्फ वो बच्चों के पीछे नहीं है, अपने दुश्मन को पहचाने। आपका दुश्मन क्यों अजीज नहीं है? आपका दुश्मन इब्लीस है। उसे रिकॉग्नाइज करें, उसे पहचाने, उसके खिलाफ जांच करें। वो आपके ज़वाजी बंधन के पीछे भी है। अब अय्यूब की बीवी आती है, क्या कहती है? छोड़ खुदा को, तू किस खुदा की इबादत कर रहे हैं, बड़ा बैंड बाजा बजाना में, तेरे खुदा ने तेरे साथ क्या किया है? अब उसकी बीवी कह रही है। अब बीवी का मेंटल लेवल देखें। अय्यूब की और बात है, बीवी की और बात है। अब उसकी बीवी कह रही छड़ खुदा नु, घर के अंदर प्रॉब्लम, मियां बीवी के अंदर खुद रासबाज है, बाइबल कह रही है रासबाज है, नेक है, लेकिन उसकी बीवी उसके साथ खड़ी नहीं है। अभी बंदा की करे, क्या आदमी करे? बीवी उसके साथ रही है, कई बार शोहर साथ रही है, क्या करे? भी फंस जाते हो। बच्चे इब्लीस ले गया है,
इब्लीसी कामों में चले गए हैं, एडिक्शन में चले गए हैं, नाफरमानी में चले गए, आप फंस गए हो, क्या करें? अय्यूब के बदन पर फोड़े फिंसियां निकल आए, पत्थर से लेकर अपने बदन पर खारिज करता था। कोई गुनाह नहीं किया उस शख्स ने, कोई नाफरमानी नहीं की है। हम तो शायद कुछ सज्जा खब्बा गिरजों बाहर निकल के कारी जाने हैं, होर नहीं तो जुबान दे गुनाह कर जाने, बुराई कर जाने हैं। ये तो आराम नाल असीं कर लेने, तो साडा कॉमन सिन है। एक जर्नल सिन ने, एक इंटरनेशनल सिन है। यही आम कर जाते हैं। ये सिन है, सिन नहीं है सिन नहीं है। बुराई करना, ऐबजोई करना सिन नहीं है, लेकिन हम करते हैं। हमें पता नहीं चलता ये सिन है कि नहीं, बट वी डू। अब अय्यूब के बदन पर फोड़े फिंसियां हैं। क्या आपके बदन पर अटैक करता है? बाइबल में नहीं लिखा, मैं बताता हूं, लेकिन कहते हैं कई साल उसके फोड़े फिंस जा रहे हैं। कितने साल इब्लीस दुख देता रहा। और बाइबल में मुकद्दस में एक औरत है जिसके जो कुबड़ी थी 18 साल से, अब्राहम की बेटी थी, रेगुलर इबादत खाने जाते थे, रेगुलर इबादत खाने जाते थे, लेकिन कुबड़ी थी। और लिखा है कि बुजरुहों ने उसे कुबड़ा कर रखा था। कई बार इब्लीस साडे भी लक तोड़ छड़दा जे, साडे रुपए पैसे का लक तोड़ छड़दा, साडे बच्चों के, साडे अज़वाजी बंधन के लक तोड़ देता, सानू पता ही नहीं चलता। उसके बदन पर फोड़े फिंसियां हैं। कई बार लोग कहते हैं पारी साहब ने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट जो कुछ नहीं आया, रिपोर्ट से बुजरुआ कितने रिपोर्टा च आंदियां ने, बुजरुआ आंदियां ने रिपोर्टा, पारी साहब तुसीं सियाणे बंदे हो, दसो है कि कोई MRI च आंदियां ने, जिड्डे वड्डी मर्जी डॉक्टर को ले जाओ, मैं देख केड़ा बंदा करदा करे बदरू है, कोई बता ही नहीं सकता है। ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ही इज द हीलर। हालेलुया। यीशु कह सकता है चलो निकल निकल ना सोए तो, उसके बंदे कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता है। ये किसी एक्सरे च नहीं जे आनिया, ना तो डिप्रैशन किसी एक्सरे च आना जे, ਇਹ ਬਦਲੂਆਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਮਾਰ ਕਟਾਈ ਸ਼ੱਕ ਪਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਸੁੰਨੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। मिसअंडरस्टैंडिंग, एलिगेशन, टांटिंग, ये चीज़ां पीछे इब्लीस साहब के पीछे। उसने बीवी को, यहाँ पर अय्यूब की बीवी को तो खुदा का इनकार करो, सीधी डायरेक्ट करी खुदा का इनकार कर। अब पुलिस ने उसके बदन को छुआ है, उसके बदन को छुआ। सिर्फ यही नहीं है, उसके फोड़े फिंसियां बीमारी की सूरत में अटैक करता है, और फिर उसका सारा कारोबार ही खत्म हो गया। कारोबार अय्यूब का खत्म हो गया। मीरात में एक दिन में कई बार पता ही नहीं चलता, आपके कारोबार में इतने तूफान आते हैं, खत्म हो जाता है। कई लोगों को आपने भी यहां पर देखोगा, चाहे वो आए लेकिन खुदा के साथ ना चले, इब्लीस ने उनको जिंदगियों को तबाह कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जब खुदा नेमतें देते हैं तो उसको संभाल कर रखे। कई लोग उन नेमतों की बेकदरी करते हैं, खुदा की नेमतों के, फिर उनका बुरा हाल होता है, फिर वो इब्लीस के लिए ओपन दरवाजे होते हैं। पहचाने, और आपको फाइनेंशियली चैलेंज जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, तो ज्यादातर इब्लीस आपके पीछे हो सकता है। आपके बच्चे ठीक राह पर नहीं आ रहे तो इब्लीस आपके पीछे हो सकता है। आपका ज़वाजी बंधन ठीक नहीं है, वो खानदान के, मेरा मतलब है, पीछे होता है। अय्यूब की जिंदगी से हमने बहुत कुछ देखा। यहां पर भी तूफान आया है, लेकिन तूफानों में व्हाट इज आवर एटीट्यूड एंड व्हाट इज आवर बिहेवियर, व्हाट इज आवर फेथ, हमारा ईमान क्या है। तूफानों में हम किसके पास मेरे अजीजों जाते हैं, यह बड़ा जरूरी है। जिंदगी में चैलेंज, जिंदगी में मुश्किलात, जिंदगी में मुसीबतें, जिंदगी में बहुत कुछ आता रहता है, लेकिन हम कहां पर जाते हैं और क्या करते हैं, इस बात को याद रखें। यीशु उठे हैं, यीशु आपकी खातिर उठ जाता है। अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करें, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, और यीशु को दावत दें, यीशु को दावत दें, यीशु का वाकई यीशु हमारी जिंदगी में हो। अगर तूफान आएगा चला जाएगा, अगर यीशु नहीं है, तूफान आया है, सब कुछ बहा ले जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। अपने आप को यीशु के साथ हमेशा कनेक्टेड रखें। लिखा है कि यीशु उठे, यीशु ने एक ही नारा मारा,
थम जा, स्टॉप। और कुछ नहीं कहा यीशु ने, ओनली वन वर्ड, थम जा। कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है जब यीशु रोके तो वो चल जाए। हालेलुया। बदरूहें यीशु का हुक्म मानती हैं, पानी यीशु का हुक्म मानते हैं, ये फासले यीशु का हुक्म मानते हैं, ये जादूगर यीशु का हुक्म मानते हैं, ये आसमान और जमीन यीशु का हुक्म मानते हैं, मुर्दे यीशु का हुक्म मानते हैं, हर तरह की तस्वीरें यीशु का हुक्म मानते हैं। अगर नहीं मानता, हम इंसान नहीं मानते। We don't obey the Jesus Christ. ना फरमानी, ना फरमानी, ना फरमानी। सारी चीजें खुदावंद के हुक्म के आगे साकन हो जाती हैं। हमारे अंदर में ये वो बात नहीं है। Every nature obey the Jesus Christ, but not human being. हम इंसान नहीं मानते। यीशु उठे हैं, उन्होंने थमा दिया सारे तूफानों को। शागिर्द हैरान हुए, ये कौन है? यहां पर एक और स्टोरी शुरू हो जाती है। शागिर्द हैरान हुए कि ये कौन है। अब ये यीशु के साथ 3 सालों से मछलियां भी खा रहे हैं, मौजे भी खा रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, दवाइयां मीटिंग भी चल रही है, सारी चल रही है। कि हफ्ते को चल रही है, कि मंगल को चल रही है, कि जुम्मे को, कि बयाना से, को वीक पूरा इनका यीशु के साथ बिजी है, क्योंकि यीशु वेले रहते नहीं सर। ये सारा दिन यीशु के साथ डे एंड नाइट बिजी है, लेकिन वो रेवलेशन के पास नहीं था कि ये कौन है। डबल सैड स्टोरी। वो प्रकाश ही नहीं था उनके पास कि यीशु कौन है। साथ रहते हुए भी उन्होंने नहीं पहचाना कि ये कौन है। रोटियां खाने के बावजूद भी उन्होंने नहीं पहचाना कि ये कौन है। फिर भी उनके ज़हन में सवाल है कि ये कौन है। भूल गए सारी नबूवतों को, वो परिचय का भूल गए। यीशु बार बार कहता था, मैं इस हैकल को ढा दो, 3 दिन में बना दूंगा। यूना की मिसाल दी, बहुत सारे अपने सलीबी मौत के बारे में हवाले दिए, लेकिन वो समझे ही नहीं कि यीशु है कौन है। पढ़िएगा, उनके ज़हन में सवाल था, ये कौन है। हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं, हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। उनके दिलों में यह क्वेश्चन था। चर्च की यही पोजीशन है। चर्च आते हैं, तालियां बजाते हैं, हम सभी ऐसे ही करते हैं, बट वी डीपली वी नेवर नो जीसस क्राइस्ट, हु इज द जीसस क्राइस्ट। हमें वो रेवलेशन नहीं होता। यीशु जब कैसरिया फिलिपिया में गए तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा, जब यीशु सलीब की तरफ जाने वाले थे, उसने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? ने कहा, कोई यिर्मयाह कहता है, कोई यूहन्ना कहता है, कोई यशायाह कहता है, कोई एलिया कहता है, कोई कुछ कहता है। कहते चलो ठीक है, ये तो सारे एक कहने, हम तो उसी की कहते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? तुम क्या मुझे कहते हैं? लेकिन शुक्र है, खुदा के रूह ने पतरस को अपने हाथ में लिया। खुदा के रूह ने पतरस को अपने हाथ में लिया, और पतरस ने फिर वहां पर यह स्टेटमेंट की कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। हालेलुया। तो जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लेकिन कब? जब 3 साल तकरीबन पूरे हो चुके थे। और वो भी जब यीशु सलीब पर गए तो फिर वो भी रेवलेशन उनसे निकल गया था। ये सारे फिर से मछलियां पकड़ने शुरू हो गए। सारे नस भज गए हैं। सारे कोई बैठने की दुकान पा ली, किसी ने फर्नीचर की दुकान पा ली, सारे नस भज गए। यीशु सलीब ते अपने कम्मा थे, इन्ने जोगे सब चारे, क्योंकि वो रेवलेशन उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ा था। वो गहराई जो चर्च के अंदर होनी चाहिए वो शायद नहीं थी। हम तो सिर्फ सुनते हैं, यीशु की बातें पढ़ते हैं। ये तो साथ रहते थे, ये तो साथ रहते थे। अपनी जिंदगी में यीशु का मांगा करें, अपना वक्त यीशु के साथ गुजारें। सिर्फ संडे ही के नहीं कि आप आकर संडे को तालिब डालें। इन द अदर 6 days we have relation with God। अपने खुदा के साथ वक्त गुजारे। अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, दुआ करे और खुदा से प्यार करते हैं। शाम सुबह दोपहर नुमा फरियादा गुजारा। यीशु सुबह सुबह उठकर दुआ करते थे। द बेस्ट टाइम। अगर आप सुबह उठकर दुआ नहीं करते तो कोई उधरों आ गया, तो कोई उधरों आ गया, तो कोई उधरों आ गया। बेस्ट टाइम विदाउट एनी परेशानी।
آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، آپ کے طوفان تھم جائیں گے۔ آج بھی خداوند آپ کے طوفانوں کو تھماتا ہے۔ آج وہ کہہ رہا ہے میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں تیرے طوفانوں کو تھما سکوں۔ آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے حالات کو بدل سکتا ہوں۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بچوں کو بدل سکتا ہوں۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرے زواج کو بدل سکتا ہوں۔ آج وہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ جب یسوع ہماری کشتی میں ہوگا، جب یسوع ہماری بوٹ میں ہوگا، تو ہم خدا کے فضل سے پھر سے ان پانیوں پر چلنا شروع کر دیں گے۔ ہاللویا۔